पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि प्राचीन ज्ञान की धरती नालंदा में एक बार फिर बौद्ध समुदाय का केंद्र बनने जा रही है। 28 और 29 अगस्त को नव नालंदा महाविहार में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के बौद्ध विद्वान और धर्मगुरु शिरकत कर रहे हैं। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन और नव नालंदा बिहार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन का शीर्षक है गुरु पद्मसंभव के जीवन और जीवंत विरासत की खोज। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्य में शामिल हुए और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। पहले आप इनका सुने। इसी निष्ठा चाहिए, हमको थोड़ी सी धारणा चाहिए। If we have all these things, we can certainly go ahead with all these things. Certainly go ahead, move ahead with all those principles. And what all those our leaders like Guru Padmasambhav, Bhagwan Buddha, they have stood for, they have given us. भगवान बुद्ध के बाद गुरु रिनपोचे ने बहुत बड़ा योगदान दिया है बुद्ध विचारों के प्रसारण के लिए। बहुत बड़ा योगदान है उनका। But what we have to do is today we have to propagate. We are not satisfied what all these our gurus have done. We will be satisfied when we will be involved in it. We have to get involved in it. Just preachings, just teachings and just prayings will not help. Are we going to propagate all the thoughts and all the preachings of all these leaders, all spiritual leaders? Yes, I am here. This is what we have to decide. So at the end of this Paramarsh, Vimarsh, that is tomorrow, what we will be taking away from this is what Guru Padmasambhav has given us. Let us take ahead. It is my responsibility. Many a times what we try to do is, it is everybody's responsibility. No sir. Everybody's responsibility is nobody's responsibility. It should be I should consider that it is my responsibility. और मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ इसको लेकर आगे बढ़ना है। Everybody's job is nobody's job. That is what our forefathers used to tell us, and that is true, absolutely true. आज अगर मैं हूँ, it is my responsibility, मेरा काम है. So this is how we have to move ahead. I think you all are scholars enough, you understand enough, you have studied enough to understand what is to be done today and tomorrow. And that is the reason why you people are here. I know I am just an instrument here just to inaugurate the very conference. But my teachings and my talks, my speeches, my utterances of any words will not help you. You people have come here to study. You people have come here to make some research, and you are here to give something to the society. That is exactly the concept, exactly the motive of this particular conference. World needs your advice. World wants your teachings. World wants how you are going to present before them the Buddha and the Guru Padmasambhav. This is exactly what we are going to do. I just take leave of you because I am also in a hurry to go somewhere else out of Bihar. Please forgive me. I would have loved to be with you. I hope the Navanit, what we call in Sanskrit, that is the ultimate what we will be getting after the Vimarsh and Paramarsh, will be helpful to the society and all our people to march ahead. Everybody here. आज के इस कार्यक्रम में जो 2 दिवसीय एक संगोष्ठी है, गुरु पद्मसंभव
उनकी जीवन और उनकी लीगेसी के ऊपर चर्चा करने के लिए, विमर्श करने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। And on this very auspicious occasion, along with me there are dignitaries like Central Monastic Body of Bhutan के संयुक्त सचिव श्री केम्पो उगिन नामग्याल जी, लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट केम्पो चिमेर जी, आईबीसी के महासचिव शार्से खेंसुर जंगपुचू रिनपोचे जी, नवनालंदा महाविहार के कुलपति प्रोफेसर राजेश रंजन जी, आईबीसी के डायरेक्टर मेरे मित्र हल्दर जी, मेरे मित्र आशीष भावे जी, सभागार में बैठे हुए सभी विद्वान और इस विषय पर विमर्श करने के लिए आए हुए सभी बहनों और भाइयों, I welcome नव नालंदा महाविहार के कुलपति प्रोफेसर राजेश रंजन ने भी बताया और यह सम्मेलन गुरु पद्मसंभव के जीवन और शिक्षाओं पर गहन चिंतन का अवसर प्रदान करेगा। पद्मसंभव जो 8वीं शताब्दी में नालंदा महाविहार के प्रख्यात आचार्य थे, ने तिब्बत, नेपाल, भूटान और भारत के हिमालयी क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के प्रसार में अभूतपूर्व योगदान दिया। इस अद्वितीय आयोजन में भूटान, नेपाल, रूस, श्रीलंका और म्यांमार सहित विभिन्न देशों से लगभग 54 प्रतिष्ठित विद्वान और धर्मगुरु भाग ले रहे हैं। यह न केवल बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि नालंदा की प्राचीन शैक्षणिक परंपरा और पुनर्जीवित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राज्यपाल अर्लेकर ने अपने संबोधन में कहा कि गुरु पद्मसंभव के जीवन पर आधारित यह 2 दिवसीय संगोष्ठी न केवल उनके व्यक्तित्व को समझने का अवसर देगी, बल्कि भगवान बुद्ध के संदेश को भी नए सिरे से समझने में मदद करेगी। प्रोफेसर रंजन ने आगे बताया, बुद्ध ने स्वयं पद्मसंभव के आगमन की भविष्यवाणी की थी, जिन्हें गुरु रिनपोछे के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्मेलन उनके जीवन और दिशाओं के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेगा। यह सम्मेलन नालंदा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को पुनर्रेखांकित करने के साथ साथ वैश्विक बौद्ध समुदाय के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस 2 दिवसीय आयोजन से न केवल बौद्ध अध्ययन को बल मिलेगा, बल्कि भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। तो फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।